I'm studying. मेरा A levels इस साल complete हुआ है. उसके बाद I was supposed to apply for my university, but पाकिस्तान आइडल आ गया. चारों बहनें गाती हैं जी. My father is सितार नवाज, नफीस अहमद. पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन पे पहली बार गाया आपने. Honestly, I wasn't sure I was gonna get in. 3 साल तक I was not in constant practice and I went in and I sang it. पहला comment जो मुझे मिला था वो बिलाल सर से मिला था और जब मुझे comment मिला I was like yeah I'm done. The 3 other judges when they gave me a standing ovation I was like oh okay. You and your sister were together in the final 30 और फिर वो select नहीं हुई थी. Was it easy to enjoy your own success? Not at all. I was happy as well for myself कि I got in. When I got to know कि she didn't get in, बिल्कुल ही emotions मेरे change हो गए. I was like tears भी थे. I was like okay I don't have I can't cry. रविश क्यों है और समिया बाजी क्यों है? I don't know. What's your dream, Tarab? Oh, because I'm so interested in Western music, I just want to do something in that. Fill my heart with soul and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and you're watching me on Fisha Magazine. और मेरे साथ तरफ नफीस है, one of the final contestants from final 16, from top 16. और very excited to have the first female contestant in our series of interviews. You know, आप पहली female contestant है. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I didn't know that. Yeah. I didn't know that. कैसी हैं आप? ठीक, how are you? मैं बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत excited हूँ. I'm a little bit nervous, but I'm more calm now. Yeah. आपसे बातचीत करने के बाद I'm अभी much 10 more मिनट calm. पहले she was very she's like it's okay we just gonna do गपशप. तो क्योंकि जितने भी पाकिस्तान आइडल के कंटेस्टेंट्स आ रहे हैं ना, मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है और मुझे इतनी खुशी होती है because I feel so proud of you guys. Thank you So much. proud I can't tell you because That मुझे means लगता है a lot. यार you guys are doing such a great job और इतने आप लोग कोई बहादुर हैं कि इतने ज़बरदस्त किस्म के जजेस के सामने गा रहे हैं और बस बहुत खुशी होती है आप लोगों को देख के. Thank you so much. अच्छा, तो आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा है? एक्साइटिंग, थोड़ा डर वाला या स्ट्रेस वाला पाकिस्तान आइडल का? Definitely थोड़ा सा डर वाला. हाँ. Excitement है, but like the nervousness is there as well. It's like I think more than the excitement अब जब now I'm like in top 16, it's Yes. like more अब वो pressure थोड़ा सा एक होता है कि now I have to do better. Yeah. I have to perform better in front of the judges. I have to do a good job. तो बस अब वो थोड़ा सा pressure और थोड़ी सी nervousness रहती है. माशाल्लाह से आप इतनी वो है ना जाबाज कि आपने गाने भी इतने टेक्निकल इतने सख्त वाले चुने कि आप इंसान कह रहे हैं दूसरों को छोड़ो तरफ अपने आप से ही तो पहले आप ना अपने आप को ही बीट करके आगे चले हैं ना. नहीं, it's like I have to choose something like जो technically भी अच्छा हो लेकिन it sounds good as well to the listeners who are listening. So आई yeah. थिंक ये आपने की पकड़ ली है बिकॉज ये बहुत अच्छा है. बिकॉज मैं आई मैसेज आई सेड आई लव योर चॉइसेस ऑफ सॉन्ग बिकॉज एक तो नए हैं, मैंने नहीं सुने हुए जो आपने गाला राउंड में गाया था, मैंने नहीं सुना हुआ था एंड आई लव्ड इट. आई वाज लाइक ये भी कोई गाना है और इतना अच्छा गा रही हैं. सो मुझे अपने बारे में बताएं, आप पढ़ रही हैं, पढ़ लिया है, क्या कर रही हैं अभी? I'm studying. I'm Okay. a student अभी. मेरा A levels इस साल complete हुआ है. Like I guess August में. ओके. उसके बाद I was supposed to apply for my university, but पाकिस्तान आइडल आ गया. I don't think anybody knows this yet. मैंने अभी तक ये बोला नहीं, but we actually had a discussion for a week. कि my mother was like, you should go, and I was like, okay, I have to apply for my university as well and stuff like that. But एक हफ्ते बाद I was like, you know what, my sister was going as well, so I was like, okay, I'll go as well. And then I went and everything happened. So आप नहीं आना चाह रही थी 100%, आप अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट करना चाह रही Yeah, I wanted to focus on my studies अभी फिलहाल के लिए, but my mother was like insisting. She was like, कर लो, this is a really good opportunity, and I thought it was a really good opportunity. So I gave it a thought, and I was like, I overthink a lot. So it took me a week. वो सब but Gen I Z का was- मसला है. Yeah. So it took me a week to decide, but I did it. I was like, okay, you know what, this is actually an opportunity I should take. So I सो आपकी फैमिली में आप लोग सब चारों बहनें गाती हैं जी. और आपके पेरेंट्स की क्या डिटेल्स हैं वो बताएं. My मम्मी पढ़ाती हैं आपकी ना, जी मेरी वो भी म्यूजिक टीचर हैं, म्यूजिक टीचर भी हैं और उर्दू टीचर भी हैं. उर्दू टीचर भी हैं. Yes, in the school. ओके. एंड अब्बू? So my father is सितार नवाज हम्म, and नफीस अहमद. जी.
he sings as well, but he's a musician. He plays sitar. तो बचपन से आपने वो मौसीकी का माहौल ही Yes. देखा है बचपन Yeah, से बचपन से, ever since I was a kid, my mother would put songs घर में सफाई करते हुए all the time, घर में गाने लगे हुए हैं पुराने, और मेरे अब्बा घर आते थे तो वो पुराने गाने लगा के बैठे हुए होते थे. My sisters used to sing so much all the time, तो उसकी वजह से फिर I grew interest in singing as well, और म्यूजिक में इंटरेस्ट हुआ. So तो आपने सीखा है या ये क्योंकि घर में ऐसा माहौल था तो आपको खुद ब खुद आ गया? घर. ओके, घर सो यू में नेवर ऐसा- हैड अ प्रोफेशनल ट्रेनिंग विद योर फादर या No, किसी के no, साथ no, नहीं? not with my father at all. My father always used to be very busy with, like, you know, इधर प्रोग्राम है Yeah. और फिर ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है. He had so many students at the time as well. अभी भी, like, he's always like busy. ओके, तो घर पे I always had mama. तो एक तरीके से मामा would be like, अच्छा ये गाना है, ये याद कर लो, ये गाना है, ये याद कर लो. ड्यूरिंग उस वक्त क्योंकि हम स्कूल में होते थे, I had time. तो कोई भी मम्मा गाना देती थी, अच्छा ठीक है ये याद कर लिया, ये शो कर लिया, ये हो गया, वो हो गया. तो ये है मेरी ट्रेनिंग. ओके. लर्निंग सॉन्ग्स तो आपको सितार बजाना आता है? नहीं. नहीं, बहनों में से किसी और को आता है? अभी तक नहीं. तो मैंने सुना है कि कोविड के बाद आपका गाना रुक गया था बिल्कुल, और आप Yeah. बिल्कुल नहीं गा रही थी. Not बिल्कुल, but like yeah, मैंने एक ब्रेक ले लिया था because after COVID, क्योंकि स्टडीज़ पे इतना पॉज आया था और मेरी पढ़ाई थोड़ी सी वीक हो गई थी. तो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन दैट मोर ओके. बिकॉज जब कोविड शुरू हुआ था उस वक्त वो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी साल होते हैं ना पढ़ाई के, ओ लेवल्स की पढ़ाई के और स्टफ लाइक दैट, उन मेरे लिए उस टाइम पे आया था. तो वो एक चीज़ थी जिसकी वजह से आई वाज लाइक कि नहीं, आई हैव टू फोकस ऑन माय स्टडीज़ नाउ. तो जब ख़त्म हुआ लॉकडाउन एंड स्टफ लाइक दैट, उस टाइम पे आई वाज लाइक इन ग्रेड 9, ओके. ग्रेड 9 और 10, और मुझे किसी भी तरीके से अपनी जो है ना ग्रेड्स अच्छे करने थे बिकॉज CIEs देने थे आगे एंड स्टफ लाइक दैट. तो आई एम सो सॉरी मैं इतनी दफ़ा कह रही हूँ स्टफ लाइक दैट. तो कंप्लीटली ओके तरफ, वी वांट टू सी द रियल तरफ जो हमें नजर आ रही है. इट्स वेरी नाइस, यू डोंट हैव टू अपोलोजाइज अबाउट अच्छा, एनीथिंग. तो ठीक है. उसकी वजह से आई वाज लाइक completely focused for 3 years. I was like completely focused on my उससे studies. पहले कि आप कहीं परफॉर्म कर रही थी, आप गाती थी कहीं? जैसे मेरे अब्बा के कोई जानने वाले अगर हुए, उन्होंने बोला कि एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, ओके, ठीक तो है. उसमें वी वांट हर या माय सिस्टर या फिर कोई सारी बहनों को कि वी वांट देम टू सिंग एक गाना. तो ये होता था बस. ठीक है. तो फिर पाकिस्तान आइडल के आने तक इन्होंने गाना नहीं गाया था. एंड इफ आई एम राइट, पाकिस्तान आइडल के ऑडिशन पे पहली बार गाया आपने ऑफिशियली, राइट? इज दैट करेक्ट? Yes. सो टेल अस द स्टोरी. I had 3 आपकी days. कहानी आपकी अल्फाज में सुननी चाहिए ना भाई. तो जब मैंने डिसाइड कर लिया था आई वुड गिव द ऑडिशन, उस वक्त आई हैड ऑनलाइन ऑडिशन के लिए, जो ऑनलाइन ऑडिशंस होते हैं उसके लिए एक दिन बचा था. सो आई गेव माई ऑनलाइन ऑडिशन, जिसके बाद हुए वो जो फिजिकल ऑडिशंस होते हैं. एंड उसके लिए आई हैड 3 days टू लर्न माई सॉन्ग. तो अब आई चोज द सॉन्ग, आई लर्नड इट in 3 days, and then I went and gave the audition. Honestly, I wasn't sure I was gonna get in because 3 साल तक I was not in like constant practice जो होती है. रियाज वगैरह नहीं करी yeah. थी, आप कुछ प्रैक्टिस नहीं करी थी? उससे पहले तक भी, बट लाइक एक तरीके से गाना भी एक रियाजत ही होती है ना. एंड आई यूज्ड टू सिंग अ लिटिल बिट, जैसे हमिंग करना घर पे और ये वो सब, लेकिन वो ज़्यादातर होता था कि जो गाने मैं उस वक्त सुन रही थी वेस्टर्न और पॉप इस तरह के. तो क्लासिकल मेरा इतना रियाजत नहीं थी. सो आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट चोज दैट सॉन्ग. आई थॉट इट वाज अ रियली गुड चॉइस एंड आई वेंट इन एंड आई sang इट. तो पहला कमेंट जो मुझे मिला था वो बिलाल सर से मिला था, और जब वो मुझे कमेंट मिला आई वाज लाइक yeah, I'm done. It's okay. I was like, it's okay. At least I tried. He was not sure about you. Yeah, right? he was not sure about me, and I understood that because I knew कि मतलब you know. मतलब दिल में एकदम से नहीं हुआ था. मैं तो रोना शुरू कर दी थी. मैं कहती मैंने बोला था अम्मा को मैंने नहीं आना, उन्होंने मुझे भेजा है, उनकी वजह से मुझे मैं ये करती मैं select
नहीं, but I was like mentally ready. I was like, it's okay, it's fine. मैं Okay. अपने आप को ये करके नहीं गई थी कि नहीं, I have to get selected. Yeah, I will get selected. But the 3 other judges. Yeah, the 3 other judges, when Yeah. they gave me a standing ovation, I was like, oh, Yes, that's what I'm saying. I was like, oh, okay. और फिर टिकट भी मिल Wow. गया. और फिर उसके बाद they gave me such good comments. I was like, okay, that means like I have to start like taking this seriously, you know? Yeah. So when I got into the top 30, उसके बाद I was like, okay, I have to start learning the song more properly and give time to it. फिर यही हुआ. This is my story. तो फिर जब आप टीवी पे आ गई तो सारे फ्रेंड्स का, कजन्स का और जो नेबर्स उन सबका क्या रिएक्शन था? कितने मैसेजेस आ रहे थे, क्या हुआ? Because I'm क्या कहते हैं, प्राइवेट मैंने पढ़ा है, तो मेरी ट्यूशन का एक तरीके से ग्रुप है. उसमें तकरीबन 30 people in the group and somebody found my video, मेरी ऑडिशन की वीडियो किसी को मिल गई and they sent it in the group and I was like, oh no, what am I gonna do? उसके बाद मुझे messages आ रहे हैं, oh my god, is this Taram? Taram, congratulations and stuff like that. They were all so supportive. I actually did not expect that much support, but they were all so supportive and they were like you know, we're so proud of you. And even people I'm kind of like an introvert. I'm a little bit reserved. तो मैं ट्यूशन में ज़्यादा लोगों से मेरी बातचीत नहीं थी and stuff like that. वैसे जो गाने में भी ना stuff like that. तो मेरी ट्यूशन में लोगों से बातचीत इतनी नहीं थी. तो जब ऐसे लोगों ने भी मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करना शुरू किया कि oh my god, Tarab, is this you? We're so proud of you and stuff like that. So I was really happy. I felt really happy. I was like, okay, people are going to support me. Yeah. No matter like what I do. Yes. As long as it's good, they're going to support me. Yeah. So I was like, yeah. वो एक tension होती है ना कि they're going to judge me and they're going to be like, oh my god, ये क्या कर रही हो? हाँ. तो वो नहीं था. कौन से जज से सबसे ज्यादा डर लगता है और कौन से जज से आपको उतना डर नहीं लगता अब तक? Honest answers. I'll be very honest. Yeah. बिलाल सर. डर लगता है? Seriously? अच्छा, और किन से नहीं लगता? किन से नहीं लगता? मुझे अब तक सबसे अच्छे मुझे कमेंट्स जो मिले वो राहत सर से मिले, तो आई एम लाइक ओके मे बी उनसे तो ये नहीं कि डर बिल्कुल नहीं लगता, बट बिलाल सर से थोड़ा कम डर लगता. और पता है क्या, उनकी ना बड़ी वो टेक्निकल किस्म के कमेंट्स भी होते हैं, बिकॉज जब आप गाती है तो बताते भी कि ये वो वाला गाना है और ये है और वो है, यू नो, तो वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपको रिलेटेबिलिटी लगती होगी ना. उनसे फिर मुझे ये भी होता है कि अच्छा ओके यार, ही टेल्स मी सो मेनी थिंग्स वहाँ पे जब रिहर्सल करी होती हैं. नहीं वैसे ही जब वो जज की उसमें बैठे होते हैं, द कमेंट्स एंड एवरीथिंग दे आर सो नाइस एंड एनलाइटनिंग इन अ सेंस कि जैसे आई अंडरस्टैंड, अच्छा ये मेरी गलती थी, नाउ आई एम गोना डू दिस नेक्स्ट टाइम. ऑल द जजेस आर लाइक दैट, बट वो क्या कहते हैं दिलार सर. अच्छा, ये बताएं, बिहाइंड द सीन्स में मतलब पीछे जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रिहर्सल कर रहे होते हैं, तो कोई जजेस से मुलाकात हुई, कोई आपका एक यू नो एक्सपीरियंस हुआ जहाँ वो आपको कुछ बोल रहे हो या कुछ हमें सुना सकती हैं? Once मेरे ख्याल से गाला राउंड से पहले ही राहत सर केम अर्ली टू द सेट, सो ही केम बैक स्टेज और जो है ना उन्होंने रिहर्सल वाले टाइम पे ऑन स्टेज ही केम ऑन स्टेज एंड उस वक्त रिहर्सल्स हो रही थी, तो ही लाइक helped everybody over there, all the contestants. अच्छा इसको इस तरह से करो, इसको इस तरह से करो. We felt so good. It was amazing. It was an amazing experience. तो आपको क्या हेल्प की उन्होंने? आपको क्या टिप्स दी? मुझे ये टिप्स दी कि कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है, सो ये है कि कॉन्फिडेंस लगाओ, जो भी गा रही हो आके स्टेज पे, डू इट विद कॉन्फिडेंस. उसका एक अलग इफेक्ट होता है. गाना अच्छा हो उसका एक अलग इफेक्ट होता है, लेकिन जब वो कॉन्फिडेंस से गाया जाए तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है. तो ये है कि अच्छा, पता मुझे क्या लगता है, मैं जब आपको गाते हुए देखती हूँ ना, मुझे ना आपकी वल्नरेबिलिटी में ना एक खूबसूरती नजर आती है. मुझे ना वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपका ये धीमा धीमा स्टाइल ही है. अगर आई थिंक इवन इफ यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंस, आई फील द वे यू सिंग, बिकॉज व्हेन यू आर सिंगिंग आप उसमें मगन होती हैं. उस वक्त आपका कॉन्फिडेंस का कोई इशू नहीं होता है. तो वो जो मगन होना है ना, वो आप कॉन्फिडेंट भी होंगी तो आप उसी तरह गाएंगी. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट, आई थिंक, तरब टू बी जंपिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर ये वाला कॉन्फिडेंस
इस टाइप का which is not really confidence is just your style वो मुझे Yeah. लगता है तरफ से नहीं मिलेगा नहीं नहीं हाँ, तरफ का अपना स्टाइल है बड़े धीमे से खड़े होके बड़े ठहराव से वो अपना गाना गाती हैं इट्स लाइक मैं डिलीवर करूंगी आप सब सुने फिर बात होगी है ना I focus on my singing उस Yeah. time पे whenever I'm on stage I try to like forget कि मतलब I'm in front of the judges या फिर कोई ऐसी बात because I need to calm myself down if I'm Yeah. not calm I won't be able to give my best yes true तो yeah जो गाला राउंड्स की जो लास्ट मेरी परफॉर्मेंस थी उसमें I was really nervous उसमें I was very nervous और क्यों because the judging was very strict उस Yeah. time पे I felt like oh my god okay अब I have to do a good job they were like they were being very nice as well the judges but एक तरीके से होता है ना कि अच्छा अगर ये चीज़ थोड़ी सी गलत हुई तो वो पकड़ रहे थे अब so I was like okay I have to do an amazing job I Yes. have to do my best at least तो इसलिए I was really nervous so आपकी बहन जब सेलेक्ट नहीं हुई hmm. you and your sister were together in the final 30 ठीक है और फिर वो सिलेक्ट नहीं हुई थी तो आपको कैसा फील हो रहा था और was it easy to enjoy your own success at that time Not at all. Not at all. I was so. I don't even know. I was feeling so many emotions at the time because I was happy as well for myself. कि I True. got in. yeah Even though when we were inside, I was not per se sure that I would get in. But I was happy with my performance. I was like, okay, I did my best. Even if I don't get further in, so that's fine. Like, I was happy. But when I got in, I was like, okay, I couldn't believe it. I was like, okay, I got into the top 16 and I was sitting. और जब वो अनाउंस कर रहे थे कि मतलब कौन कौन है और कौन कौन नहीं है nobody knew किसी को कुछ भी नहीं पता था सबको उन्होंने अलग अलग करके रखा हुआ था the ones who were selected were अलग as well and the ones who weren't they were sent back to this room तो it was like कि उसी वक्त पता चल रहा था सबको कि अब ये नहीं हुआ ये हो गया ये नहीं हुआ ये हो गया तो when my sister went in or when I got to know कि she didn't get in she didn't get into the top 16 वो बिल्कुल ही इमोशंस मेरे चेंज हो गए आई वाज लाइक ओके माय सिस्टर डिड नॉट गेट इन एंड ऑफ कोर्स उस वक्त टेयर्स भी थे आई वाज लाइक teary as well but I don't really cry a lot so I was like okay I can't cry I was thinking मेरे साथ दूसरे contestants भी बैठे हुए थे one of which was Meera Baji she was there with me and she was really good friends with my sister as well उस टाइम पे तो she was like comforting me. She was like, it's okay. And I was like, yeah, I know it's okay. And my sister came out and she looked at me and she was smiling so big. She was like, and I was like, I know it's awkward now. It's like she was difficult. so happy for me and I was utna hi sad and upset for her because for me, I wasn't sure pehle na. I came because I was like, this is a good opportunity. I should take it. For her, this was kind of like a dream because इससे पहले वाला जो पाकिस्तान आइडल हुआ था the season 1 उसमें she couldn't audition because of the age because she was young तो she wanted to but she couldn't and she says that she cried a lot she cried a lot उस time पे so when she did this with me I really wanted her to I really wanted the both of us to go further but like kind of उनके लिए ज़्यादा था because this was her dream But I'm sure Allah ने उनके लिए इससे बेहतर कोई चीज प्लान करके रखी होगी she wasn't sad or upset at I love the videos के बाद वो जो वीडियो निकाली आप दोनों में like लोग समझ होंगे कि I'm sad but look here my sister is still there you know that was really nice video and I know कि आप दोनों बहनें हैं मुझे नहीं पता a था lot of people didn't know I was like what I was they're shocked sisters no I was shocked I was like how do people not know that we're sisters we were like together in the behind the scenes we were together मैंने वो वीडियोस देखी नहीं इस वजह से ना तो शायद मेरे लिए हाँ, वो probably. miss हो गया मैंने तो वो रील देखी जिससे मुझे पता चला कि आप दोनों बहनें हैं even after the reel people were DMing my sister they were like is she your sister is this true and I was like bro we made a whole video now अब क्या शक है इसमें अब क्या और क्या करें अच्छा जरा बताएं कौन टॉप 5 पे हैं आपके हिसाब से don't ask me these We questions have to एक तो मुश्किल सवाल होना चाहिए ना oh my god no I don't know Who do you think are really good
who will make it to the top 5? Why would you ask me this question? Don't do this to me. अच्छा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं. बताएं आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती किससे है? एक तो मुझे ये बहुत अच्छी लग रही बात that ये जो final 16 contestants हैं ना, they are all so friendly with each other. There's no toxic competitiveness among them. तो वो बहुत अच्छी बात है. We are तो very आपकी close. किससे ज़्यादा दोस्ती है? मेरी ज़्यादा दोस्ती रविश और फरियाल, Okay. one of the younger contestants. They both are very close to me. मैं जब भी, because I live in Karachi, so I'm not in the guest house most of the time. Okay. So whenever I am in the guest house, I'm always in रविश के रूम में, रविश के रूम में जाना. रविश कहती है मेरे रूम का दरवाजा तुम खोल के अंदर आ जाया करो, तुम्हें खटकाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, मैं कमरे में हूँ या ना हो तुम आके बैठ जाया करो कमरे में. So like I go into her room, फिर फरियाल आती है, फरियाल से बातचीत. तो I'm very close with Ravish and Faryal. Okay. But I'm also like close with Meera Baji, Samya Baji. तो वो Hira रविश Baji. क्यों है और समिया बाजी क्यों है? I don't know. I don't know. It's just like I don't know. I usually सामिया एंड मीरा आप लोग बाजी हैं और रविश है. दाल में कुछ काला बच्चे. नहीं. I call Samya. मैं यहीं से बैठे पाकिस्तान आइडल में ना मस्ती कर रही हूँ. I sometimes call Samya. Sometimes I call Samya Baji. मतलब जो भी आ जाता है उस वक्त में. नहीं, I'm just teasing you. I'm sure जिसके साथ जो comfort level है और जो relationship बन गई वो होता है. It doesn't make a difference. It's how your connection is. लेकिन आपको लगता है कि आप guest house में नहीं है तो आप miss करती हैं या आपको miss हो रहा है, you want to be there? मुझे ऐसा लगता है कि होता है, जाहिर सी बात है, experience होता है. The experience of living with the contestants and spending time with everybody, वो सब जो मजे वो लोग कर रहे होते हैं वहाँ पे वो सब. आप चली जाना, आप नहीं रह सकती? नहीं मैं जा सकती हूँ, but also एक और चीज़ ये है कि home sweet home. घर में आप मजे के खाने बना के सबके लिए लेके जाया करें ना आप. yes हम लोग ये सब करते हैं. तो I do go there, I visit the guest house a lot, but I don't live there yet. Okay. What's your dream, Tarab? Oh. That's a good question. My dream. I have a very big dream. We want to know your big dream. Because I'm so interested in Western pop and Western music. My dream is, I just want to do something in that. Okay. I've told this to nobody. मुझसे बोला ही नहीं जा रहा अब. But like nobody knows about this yet. But yeah, that's my dream. And उसकी वजह से like I feel a bit scared and nervous that people might feel like why is she doing like Western music and like why does she like that a bit more. क्यों आपको ये क्यों लग रहा है लोग ऐसा क्यों कहेंगे? I don't know, I just feel like I think too much. I'm an overthinker. I think that would be really nice कि अगर पाकिस्तान से हमारे कोई सिंगर जो हैं या कोई एक पाकिस्तानी जिसमें इतनी कैपेबिलिटी है to sing like Adele or That's a bit the bar is too high. That bar is too high. Yeah, but go towards Western music or that genre. So why not? We would love to have something from that kind of music in our pop That song means or so not much. Adele को मैं ऐसा नहीं बोल रही मतलब generally Western music की बात कर रही हूँ कि उसका कोई touch हमारे music में भी आ जाए या हमारी industry में भी आए तो that would be really nice. Thank you so much. That means a lot. Of course. And आपकी तो सबसे अच्छी बात ये कि हमने आपको ईस्टर्न गाते हुए सुन लिया है. Like तो मुझे टर्म्स नहीं आती so sorry भाई. मतलब क्लासिकल या क्लासिक या गजल्स हमने या थोड़े फिल्मी गाने आपको जो बड़े टेक्निकल हैं वो हमने गाते हुए सुन लिया है. तो आपका वो जॉनरा तो हमने पता है कि स्ट्रॉन्ग है ही है. तो आई एम श्योर वेस्टर्न भी आपका अच्छा होगा जिस तरीके से आप पकड़ती हैं म्यूजिक और राग को और I'm trying to sound like an expert and use these words and I should not do that. गाना अच्छा गाती है. You're doing an amazing job. So what motivates you? I think my passion. Your passion is music or Yes. studies? My passion is music, but then at the same time, I don't want to leave my studies for it. I want to keep up going with both of them.
So मुझे एक इतनी साथ। इंटरेस्टिंग बात लग रही है, आपके पास ये टैलेंट है गाने का, यू नो लाइक मुझे तो एक स्किल और टैलेंट एक्वायर करना पड़े ना, राइट? या करना पड़ा, जैसे मैं इंटरव्यूज करती हूँ या मैं रिव्यूज करती हूँ, राइट? यू हैव एन इनबॉर्न टैलेंट जिसको आप थोड़ा सा ब्रश करें तो और भी ज़्यादा अच्छा हो गया, बट एट द सेम टाइम अपनी पढ़ाई से आप नहीं हट रही हैं, एंड देयर इज दिस सेंस ऑफ क्लैरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर यू नो कॉन्वर्सेशन. तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी है. हाउ डू यू गाइज गेट दिस बैलेंस? क्यों आपको ये बात टेम्प्ट नहीं करी कि छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई क्या करनी है, मैं तो पाकिस्तान आइडल में भी सिलेक्ट हो गई हूँ, मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगी तो आई कैन बिकम अ बिग यू नो अ नेम, पॉसिबिलिटी है. आप अपनी पढ़ाई का फोकस जाने नहीं दे रही है जितनी मेरी और आपकी बात हुई Yeah, है. yeah. So how does this come along? Is this only you or do you see this around in your generation more? I think it's because of my sisters, because I have seen them doing both the things together pretty well, like Okay. really nicely. And I don't want to leave my studies, even though I've never been interested in studies, like in a sense कि जैसे बचपन से ही I wasn't very good at it, Okay. but I wanted to get better at it. And now that I feel like I am better at it, I don't want to leave it. ठीक है. तो मुझे होता है कि मतलब पढ़ाई में भी कुछ साथ में कर लूँ एक तरीके से. I have two things now, like you know, to rely on. So if I can't rely on this, then I can rely on my studies. If I can't rely on my studies, then I can rely on this. तो एक तरीके से I have two options now. तो I don't want to leave my studies. ये जो आप रिलाई करने वाली बात कर रही हैं, ये फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? इज इट बिकॉज जो आज 2025 में पाकिस्तान में एक यंग लड़की है, उसने जो पहले देखा है कि पाकिस्तान में हमारे माशरे में एक औरत की फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती थी, सो यू गाइज आर, इज दिस अ रिएक्शन ऑफ दैट? लाइक व्हाई दिस थिंग ऑफ के आई नीड टू हैव अ बैकअप ऑफ माई ओन, यू नो, अगर ये नहीं होगा, आप एक, वो कहते हैं ना, यू नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. Yes. यू सेइंग कि आई एम नॉट यूजिंग द जेन ज़ी लिंगो, मैं बहुत ही नहीं, ओल्ड नहीं, लिंगो यूज कर रही हूँ, बट समझ तो आ गई नहीं, होगी. yeah. तो ये मैं जानना चाह रही हूँ, ये थॉट प्रोसेस कैसे आता है? व्हाट इज इट इन यू? व्हाट हैव यू सीन अराउंड यू? क्या एक्सपीरियंसेस हैं जो, या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्होंने आपके अंदर ये थॉट डाली है? Observations हैं जिन्होंने मेरे अंदर ये thought डाली है. I have seen so many women जिनके, क्योंकि because they're not financially that strong, they're not standing on their own feet. उनको कितनी सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है to get where they want to get, या फिर to do something at कुछ भी इस तरह का करने के लिए. I feel like जब आप खुद अपने women, men, जो भी, जब आप खुद अपने जो है पैरों पे खड़े होते हो ना, that power that you feel, that you कि मतलब कि now your life is yours. You can do whatever you want to do, and you can take care of yourself, and you don't need to rely on another human being to survive. True. वो feeling is just something else. When you have to rely on someone, I feel like वो एक चीज़ होती है कि now without that person or those people, you cannot do certain things. जैसे कि I'll give you an example. जैसे कि कुछ in Pakistan, women, they can't go out alone because they're not independent enough to do that. They're not strong enough to do that. And even if they are strong enough to do that, because they're not standing on their on their own feet. They're not financially stable. They're not mentally एक तरीके से, they are relying on someone. I'm so sorry, I'm really bad at explaining stuff. You're doing a great job. You're doing a great job. So they don't have the confidence to go ahead. Yeah, they don't have the confidence to go ahead and even get out of their own houses. Yeah, वो mental peace और वो जो अपने अंदर trust है ना, वो नहीं होता है कि हम कर सकते हैं. Exactly. So when you are standing on your own feet, you have your own financial support and mental support भी उससे मिलती है बहुत ज़्यादा. कुछ लोगों के opinions में हो सकता है कि वो कहें कि life थोड़ी सी hard हो जाती है because now you have to financially take care of yourself as well. But I feel like mentally it becomes way more easier. It becomes so much more easier to do things, to nobody, like, you know,
judges you Yeah. when you get out of the house. They already know, okay, she is जाएगी। क्या, she is ये तो करती है, करेगी, हाँ ये तो करेगी, करती है, इंडिपेंडेंट है, हाँ। she is strong तो enough. एक्सपेक्टेशंस भी वही हो जाती हैं। Yes, तो बट इज इट आल्सो बिकॉज आप 4 बहनें, तो बीइंग ओनली सिस्टर्स ये चीज आ गई है क्योंकि हमें तो खुद सब कुछ करना है। I feel like yes, है ना? yes, Yeah, yes. क्योंकि- Even though our Yes, of parents course, yeah. are so supportive and they've never, हमें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि क्योंकि हमारा भाई नहीं है या कुछ, या फिर हम लड़कियां हैं तो we're like, you know, कि हमें वो बाहर नहीं जाने देते ज़्यादा Yeah. कुछ, या फिर we have the freedom that is required and we're trying to take as much advantage of it as we can. जो हम लोग पढ़ना चाहते हैं, जो हम लोग करना चाहते हैं. Some of my sisters, they want to go abroad and our parents never stopped us. They're trying and like just for studies and stuff like that. Even I want to go abroad for studies. That's my plan, but let's see. इंशाल्लाह, तो अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो yeah, it just feels नहीं बिल्कुल माशाल्लाह से। आई थिंक आप लोग जितना आगे जा रहे हो, जितना कॉन्फिडेंस में आपको देख रही हूँ, तो आपके पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो आई जस्ट वांट यू टू क्लैरिफाई कि आई डोंट मीन टू से कि आपके पेरेंट्स वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी एक्सपेक्टेशन हो कि आप बेटे हो या नहीं that's fine. बट मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू आर फॉर एग्जांपल, मैं अपने ऑफिस में बीइंग फीमेल्स, तो एक आपको हो जाता है कि अच्छा वी डोंट हैव अ गाय जो जाके वो यू नो वो बल्ब चेंज करेगा या वो बाहर से मोटर, पानी वाली मोटर को That's बंद true. करेगा। इफ यू That's true, एक्सपीरियंस that's ऑल दीज थिंग्स, यू नो, Yeah, वो हमें खुद ही करना है, यू नो। तो यू हैव दिस कॉन्फिडेंस इन यू कि वी आर नॉट गोना वेट फॉर समबडी टू कम एंड डू इट फॉर Yes. अस, हम खुद करेंगे। जब And that is actually because of our parents, because they're Yeah. like उठो हाँ, जाओ जाके करो, Yes, तो मैं किसने रोका और है? बहुत अच्छी बात है, ये तो कहती हूँ जिनके भाई हो उनको भी यही करना चाहिए। बिल्कुल Exactly. सब लड़कियों को खुद करना चाहिए ये चीजें। उसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, but then you're not scared to like you know do ये छोटे छोटे काम के बाहर जाके मोटर खोलनी पड़ेगी Yeah. या ये सब करना हाँ, पड़ेगा. अब वो कितना नॉर्मल हो गया ना। एक Yeah. जमाने में it was like लड़की करेगी, अब इट्स नॉर्मल। डू यू फील पाकिस्तान में बीइंग फीमेल जेन ज़ी, you know, it's easy, it's tough, how is it, what are your challenges? अच्छा, और I'm- Pakistani society has changed to accommodate you guys? अच्छा, I'll be very honest, I'm not a social butterfly. I usually It am doesn't at make home. a difference. It I'm doesn't make usually a at difference. home. Generally, I'm talking about. It doesn't make a difference that whether you go out that much or not. Generally, you know, आप लाइफ तो गुजार रही हैं ना, डे टू डे फंक्शंस तो कर रही हैं, इंटरेक्शन तो आपके डिफरेंट लोगों से डिफरेंट कैपेसिटीज में होता ही होगा, यू नो। I feel like it has changed a lot, and it is like you know better now. But of course वो जो कुछ लोग होते ही हैं जो करते हैं इस तरह से, मतलब they still have that mindset and you know, but it's a lot more better now. It's like easier as a Gen Z girl. It's easier for me to go out with my friends to a cafe, wearing what I'm comfortable in. Yes. And not people don't really care anymore. I feel like they don't like वो जो एक होता है ना कि पहले people used to look and they used to talk, judge वगैरह, वो नहीं होता. Like they're like, oh, they're just teenagers. Yeah. You know, yeah. प्रेशर है कि बड़े अच्छे से तैयार होके निकलना है, ये होना है, Oh, सोशल not मीडिया पे ये at पोस्ट करना है। अच्छा, ये तो all. सोशल मीडिया पे है ही, गलत हाँ. सवाल। हाँ, बट ये प्रेशर है कि बहुत प्रेजेंटेबल होना है और बहुत Not अच्छे at से all, नहीं। not at all. Actually, my mother, she is more उस मेरे लिए कि कैसे जा रही हो भाई, कौन से कपड़े पहन लिए. I usually like I have my father's पुरानी like button-ups. I love wearing button-ups. Oh, that's so yeah. nice. Okay. I love wearing button-ups or Jana t-shirts and so whenever I take out my father's button-ups or my father's button-ups to wear to go out, my mother's like, ये पहन के जा रही हूँ। इतनी बड़ी है तो अपने साइज की ले आओ. पहननी है पहनो, साइज की तो पहनो, but I still wear it. Were you more close to your mother or your father? मुश्किल सवाल है शक्कर से. She just gave me that look. Don't ask me this question. Mama is sitting right in front of me and Abba will be seeing this. How dare you ask me this question? देखिए मैंने अब 2 मुश्किल सवालों में से एक मुश्किल सवाल तो करना पड़ेगा ना. अरे चूज वाले क्यों देती है? नहीं, but She's so cute. चूज वाले क्यों देती है? Okay. अच्छा, दोनों की अच्छी बातें बताना. How are you close? मैं आसान देखिए. okay, yeah, thank you so much. That's better. How are that's you close better. to both of them? In what ways? With my mother because बचपन से उन्होंने
उन्हीं से मैंने म्यूज़िक सीखा है, जितना भी सीखा है, जितना भी मुझे पता है, उनकी वजह से पता है. And also because she's a woman and I'm a woman. इसलिए So भी you बहुत can close understand. Yeah, we both understand each other Yeah. a lot. And बाबा से ज़्यादा I feel like मेरी मम्मा से ज़्यादा दोस्ती ज़्यादा है. deep talks Hmm. and stuff like that. I don't really open up to anyone. My mother tries. She's like, okay, कोई problem है, कोई issue है, बताओ, बोल के नहीं रही हो. So, but like, I think it's kind of more easier for me to open up to my mother. And that probably is because she's my mother. Like Yeah, of माँ course, और yeah. जो बच्चे का जो होता है bond उसकी वजह से. And also because I've spent more time with my mother. My father used to be very busy. Still is very busy. तो इसलिए एक ज़्यादा एक तरीके से उनसे बातचीत करना, उनसे चीज़ें शेयर करना. And she is, I don't know, it's gonna be a bit cringe, but she's kind of like the cool mom. So why is it cringe? That's so good. I think ये तो इतना बड़ा compliment है कि ये मेरे ख्याल में इससे बड़ा compliment तो किसी मदर के लिए हो ही नहीं सकता. ये Gen Z अपनी mom को कह रही है she's cool. I think that's really good. Yes, That's she's really good. cool and she's very understandable and she's like, माशाल्लाह. अच्छा इस तरह के स्टाइल पहनो कि मतलब कोई नया स्टाइल है, ये ट्राई करो, इस तरह के कपड़े पहन के बाहर जाया करो, इस तरह से तैयार हुआ करो. I'm more of like, simple in a way कि जैसे I prefer comfortable more. Yeah. Comfort style, for yeah. me is my priority. But like वो मुझे इस तरह के कपड़े पसंद है जैसे कि बटन अप्स खुले, हाँ, आराम से chill कर आराम से लेना. चिल कर रही हूँ मैं, कैफे पे जाके आराम से बैठूँ. So your mom facilitates you. Yeah, Yeah. she's And father is more like, a person to look up to and Yes, respect and yes, yes, yeah, yes, वो definitely, होता है, वो होता है, definitely. yeah. अच्छा सुना क्या रही हैं हमें आप क्या सुनना चाह रही हैं? मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है. मेरे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है. Western? Yeah, Western. Okay. I'm excited to see which one she will sing. Fly me to the moon and let me play amongst the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with soul and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In another word, I love you. This is so nice. आप ऐसी इतना घबरा रही थी. Thank you so much. What happens in life or whatever you experienced, उसकी feelings, उसके emotions वो reflect करते हैं जब आप गाती हैं. Do you bring them in your singing? I Because try to. अभी जब आप गा रही हैं ना, जो पहले हैं तू लाख चुराए गोरी, तू लाख चलेरी गोरी. तू लाख चलेरी गोरी. हंसे मत भाई आप लोग, इतना सीरियस बात कर रही हूँ, हंसे हैं ये लोग. ये देखिए ये लोग करते हैं. मतलब ठीक है यार, इंसान परफेक्ट नहीं होता. नहीं याद रहे मुझे जुमले, वर्ड्स, व्हाटएवर. हाँ, अब आप बोले क्या थे उसके लिरिक्स, मैं नहीं बोली. तू लाख चलेरी गोरी. थम थम के सही गाना मैंने. तो वो ना मुझे एक like I feel an emotion there from you, So that's why I'm saying that you. I try to bring out that, but I feel like वो सुन के भी जो है ना, एक होता है ना कि जिस तरह से सिंगर ने उसको गाया हुआ है, जिस इमोशन से उसने उसको गाया हुआ है, वो भी एक तरीके से एक प्रैक्टिस होती है, एक लर्निंग होती है, जिसको सीखना होता है आपको गाने से पहले. नहीं, बहुत अच्छी बात है. तो because I feel that's another aspect of being a singer, which a different type of thing, because a lot of people sing कि वो emotion से sing करते हैं. उन्होंने जो लिखा, जो feel किया. For example, हमारी केटी पेरी जो है, वो तो उनकी जो experience होती है वो लिखती है, वो गाना बनाती है, right? Which people are relating to. Exactly. लेकिन आपका एक और process है कि आप जो सुनती हैं वो आप. Yes, I try to उस emotion को catch करने की कोशिश करती हूँ. I'm like, अच्छा okay, the wordings are saying this, तो मतलब उससे ये emotion डालने होंगे. And
I listen to how the singer sings it. Yeah, and you pick it So, up. yeah, then. I try So, to pick it up. Is there a song जिसमें हमें तरफ के अपने real emotions आ जाते हैं whenever you sing? Not you're not picking up what the singer is just saying. Is there any song जो आपके दिल की आवाज हो या आपकी मन की आवाज हो? Is there a song? ये अभी तक नहीं है. Not yet. Not yet. Not yet. Not. अभी तक मतलब जो मुझे सालों मतलब साल feel गुजर नहीं के हुआ। सदियां गुजर के गाना ऐसा नहीं बना इस तरह के इमोशंस I feel like I'm just teasing you. I think you will write your own song yeah. which will probably be a western Probably. and that's where we will see Tarab's real Yeah. emotions coming out and I'm waiting for that time. Inshallah. Are you excited या आप थोड़ा nervousness ज़्यादा बढ़ रही है जैसे जैसे अब आप लोग के गाला राउंड्स खत्म हो रहे हैं वो जो real rounds हैं जहाँ पे you know bottom 3 की elimination भी start हो जाएगी Oh God, and वो yes. सब होने वाला है उसके लिए nervousness ज़्यादा हो रही है या क्या और you just gonna you just मुझे telling yourself मैं nervousness enjoy गाना राउंड से शुरू जो है मैं कि शायद कम हो गई हो ज़्यादा हो गई हो या नहीं नर्वसनेस मुझे गाला राउंड के जो सेकंड राउंड हुआ है गाला राउंड उससे उस वक्त ही शुरू हो गई थी आई वाज लाइक ओके आई हैव टू नाउ डू बेटर देन आई डिड लास्ट टाइम दैट्स व्हाट आई थिंक एवरी सिंगल टाइम आई एम लाइक अच्छा नाउ आई हैव टू डू बेटर इससे बेटर करना है अब इससे बेटर करना है तो यार नर्वसनेस इज देयर अ लॉट ऑफ मैं नर्वस बहुत जल्दी होती हूँ बहुत ज़्यादा होती हूँ तो नर्वसनेस मुझे हर वक्त ही होती है आप बहुत अच्छा करती हैं जो भी करती हैं जैसे भी आपने इंटरव्यू में इतना अच्छा बोला आप ओवर थिंक कर रही हैं बस यू डू अ ग्रेट जॉब आपने इतने खूबसूरत गाने भी मैं गा के सुना इतनी प्यारी बातें भी की सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम तारा Thank you so much for calling me. Thank you so much for calling me. मैं जितने भी मैंने अब तक मेरे ख्याल से 3 ही दिए होंगे 3-4 ही दिए होंगे इंटरव्यूज दिए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल आई फेल्ट हियर आई एम नॉट Thank you so आई एम much. नॉट जोकिंग मतलब मुझसे आई एम लिटरली आस्किंग देम अब क्या बोलूँ मुझे बताएं मैं क्या बोलूँ बट लाइक यहाँ पर इट्स कमिंग आउट इन फ्लो में बोल रही हूँ मैं सो इट्स लाइक It's really nice. Thank you so much for calling me. You're It was an welcome. amazing experience. No, we were waiting कि हमें कब चांस मिलेगा कि हम तरफ को रियल लाइफ में यहाँ देखें थोड़ा बीच में कुछ चीज़ें चल रही थी जिसे हम भी नहीं कर सके बट वी आर बैक टू आवर यू नो सीरीज ऑल्सो एंड तरफ इज द फर्स्ट फीमेल कंटेस्टेंट बीइंग इंटरव्यूड हियर बहुत जल्द आप इनका इंटरव्यू देखेंगे एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट तरफ Thank you so रियली much. लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन ऑल द राउंड्स अहेड Thank you कि आप so हमें much. क्या क्या सुनाएंगी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो पता भी चल रहा होगा मेरी उससे बट अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए Thanक यू सो मच और सब कुछ खैर आफियत से करे थैंक यू सो मच आमीन एंड और आप पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल उस पे जैसा कि आपका ख्वाब है you know. इंशाल्लाह Inshallah. थैंक यू सो मच दिस You're मींस अ welcome लॉट and take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz thank you so much my heart and soul and let me sing forevermore